यस सर। आपने सेंट जोसेफ मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ाई किया है। जी सर। इंटरमीडिएट आप साइंस साइड से रहे। यस सर। ये मॉन्टेसरी स्कूल क्या होता है? So Montessori is actually, in literal terms, it is related to small children. Somehow it has now been generalized to be a public school. So, अच्छा, और पब्लिक स्कूल क्या होता है? public schools are basically to distinguish schools which have been established by particular communities, for example, missionary schools or some uh, नहीं, charitable schools. So, public schools are therefore open to all of the children and all of the sections, and it can be established either by the government or by the private members. माइनॉरिटीज़ को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है? Article 30. क्या कहता है आर्टिकल 30? So Article 30 is कि the linguistic and the religious institutions can have this right to form institutions of their own, and state cannot they have the अच्छा, right to छोड़िए, आप establish. ये बताइए, सीएए को लेकर के पिछले सालों में भारत में अलग अलग जगहों पर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। आपको क्या लगता है, ये विरोध प्रदर्शन सही था, गलत था, या क्या वस्तु स्थिति है? आपकी क्या राय? Sir, definitely it was constitutionally wrong because there was various misinterpretations of this act. People were not aware of this act fully, and so some anti-social elements deliberately tried to mislead people, mislead some section of the community, and that is why it was a result of this misleading that this whole violent protest around the country happened. In true sense, the act was actually protecting the minorities of the neighboring countries, and it was also implementing the Nehru Liaquat Pact in reality. So after 60 years, this Nehru Liaquat Pact was actually truly implementing. तो आपको लगता है कि वो विरोध प्रदर्शन सही नहीं था? Definitely, sir, it was not wrong. It was not right. It was very much constitutionally as well as morally wrong. जब से वर्तमान सरकार भाजपा की प्रदेश में आई है, इन्होंने कई जनपदों का नाम बदल दिया है। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, फैज़ाबाद को अयोध्या कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया। ये आपको लगता है उचित है? जगहों के नाम बदले जाना आपकी राय में सही है या गलत? प्रदेश सरकार के इस फैसले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? So each and every government which comes in power has this right to do whatever they want in their administrative. No, they can't do whatever they want. They have to do something and everything which is under the law and under the constitution. So definitely, sir, naming the country, naming the cities or institutes is under their jurisdiction. However, what I feel is that instead of going to the past or instead of reconstructing the past, what we can do is to bring more social reforms and more economic reforms among the community, because we have करना चाहिए की बात नहीं। अब मैं आपसे बिल्कुल एक टू द पॉइंट, पिन पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ। सरकार का जगहों का नाम बदलना, जो फैज़ाबाद को अयोध्या और इलाहाबाद को उन्होंने प्रयागराज किया, ये सही है या गलत? हाँ या ना में जवाब दीजिए, और अगर जो भी जवाब है उसको आप सब्सटेंशिएट कीजिए कि क्यों आप ऐसा समझते हैं। So for many of the cities which they have renamed, it is true, because actually the real identity of that cities was related to that old name only. So for example, if Ayodhya was renamed as Faizabad during the Mughal rule, but however Ayodhya is a very legendary city. It has a legend associated with Lord Ram. So it's actually the identity. So on my part, I feel that renaming Ayodhya is absolutely right. For Prayagraj, I can say that Prayagraj was also an ancient city. It was a Mahajanpada. So renaming Allahabad into Prayagraj is also correct. तो मेरे ख्याल में हम लोग को हिंदुस्तानी ज़बान में बात करना चाहिए। आप अंग्रेज़ी ज़्यादा बोल रहे हैं, हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश के हैं, राजकाज की भाषा हिंदी होगी। अगर आप डिप्टी कलेक्टर या राजकीय सेवा में आते हैं तो आपको हिंदी में ही बात करना और आदेश देना और निर्देश लेना पड़ेगा। जी सर। ठीक है ना?
तो ये जो कल लाल किला पर किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? सर जैसा मैंने कहा, जैसे सीए में मिसलीडिंग हुई थी, वैसे ही इस फार्म लॉज में भी मिसलीडिंग हुई है। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें भी शामिल हैं, जिसके वजह से ना सही से प्रोविजंस फार्म लॉज के बताए गए हैं फार्मर्स को। थोड़ा बहुत जनरल, थोड़ा बहुत डिस्क्रिशनरी पावर है इसमें गवर्नमेंट को, जो कि मतलब मुझे लगता है ऐसा कि सुलझाई जा सकती है अगर फार्मर ग्रुप्स और गवर्नमेंट को बैठ के अगर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे वो डिस्कस सहमति उनकी हो सके। जहाँ तक मुझे लगता है जो कल हुआ वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी रॉन्ग है और मोरली भी, और किसान जो कि मतलब बैकबोन है हमारी कंट्री के, वो तो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है सर। सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी सर। लेकिन आम लोगों की अवधारणा ये है कि मौजूदा सरकार में माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और वो तमाम मजहबी मामलों में मदाखलात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ट्रिपल तलाक का बिल लेकर आए, मिसाल के तौर पर सीए में ये एक वहम पैदा करने की लेकिन कामयाब कोशिश हुई कि इससे हमारे जो अक़लियतें हैं उनके कुछ हकूक़, शहरी हकूक़ छीन लिए जाएंगे। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार में हमारी अक़लियतों के साथ कुछ अलग तरीक़े का बर्ताव पेश किया जा रहा है? अगर ट्रिपल तलाक की बात है तो वो एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन था। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि राइट टू रिलीजन डेफिनेटली राइट टू इक्वालिटी विल डेफिनेटली सरपास राइट टू रिलीजन। तो ये विमेन इक्वालिटी की बात थी, तो ट्रिपल तलाक तो बिल्कुल ही प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन था। और सीए की जैसा मैंने बात कहा सर, वो तो मिसलीडिंग था। और जहाँ तक बात है डिस्क्रिमिनेशन की सर ये सबका साथ सबका विकास, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, तो बहुत ही प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस लाए गए हैं। लेकिन सर जो डिस्क्रिमिनेटरी है वो कुछ अनटुवर्ड्स इंसिडेंट्स की वजह से हुआ है, जो कि इन द लॉन्गर रन सुलझाया जा सकता है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए मुस्लिम कम्युनिटी में। अच्छा, हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बड़ी बहस चल रही है। जी सर। लेकिन हमारे देश का एक सेगमेंट है जो ये मानता है, और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ ये मानती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर लॉ कमीशन ने भी कहा है कि इस टाइम पे ना ही ये डिज़ायरेबल है और ना ही मैंडेटरी। जैसे कि देख सकते हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में लाया गया था, फिर भी अभी भी डाउरी चल रही है। तो व्हाट वी नीड इज़ चेंज इन सोशल बिहेवियर। हमें अपने सोशल बिहेवियर में चेंज लाना है। तो जिस दिन सोशल बिहेवियर में चेंज आ गया, उस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड इन रियलिटी इम्प्लीमेंट होने के लायक हो जाएगा। अच्छा, अभी नहीं है, अभी वक्त नहीं आया। अभी वक्त नहीं आया है। अच्छा, ठीक बात है। तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में आपने एल्विन वॉरियर का नाम सुना है? वेरियर एल्विन, जी सर। तो वेरियर एल्विन का क्या योगदान है? सो वेरियर एल्विन का योगदान ट्राइबल इश्यूज़ पर रहा है, बोथ प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। वो आइसोलेशन फेवर करते थे। इनिशियली उन्होंने आइसोलेशन ट्राइबल्स के लिए एक ऑप्शन कहा था। इनके प्रतिद्वंदी जीएस घुरे साहब थे, जो कि एक बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो भी हैं। तो उनका मानना था कि हिंदू बैकवर्ड, ट्राइबल्स बैकवर्ड हिंदूज़ हैं और उनको मेन स्ट्रीम कर देना चाहिए हिंदू कम्युनिटी में। जबकि वेरियर एल्विन का कहना था कि ट्राइबल हैव अ डिस्टिंक्ट, उनकी अलग आइडेंटिटी है, उनकी अलग सोशियो इकोनॉमिक आइडेंटिटी है। तो उनके लिए स्पेशल ट्राइबल पार्क्स बनाए जाने चाहिए, जिनमें उनको आइसोलेशन पॉलिसी के तहत उनको अकेला रखे जा सके, ताकि उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी। प्रोफेसर आंद्रे बेतिल का क्या कंट्रीब्यूशन? सर पार्डन सर? टीके उमन एंड प्रोफेसर आंद्रे बेतिल। सर टीके उमन का मुझे नहीं पता, आंद्रे बेतिल का मुझे पता है। क्या पता है? उनका भी सर योगदान इसमें रहा है, ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम में रहा है, कि उन्होंने बताया थी कैसे
ट्राइब्स कास्ट हिंदूज से डिफरेंट हैं और कैसे ट्राइबल्स के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ लानी चाहिए मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग, और उनका योगदान रूरल डेवलपमेंट में भी रहा है। आंद्रे बेतेल और रजनी कोठारी दोनों ने कहा था कि जब तक पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट चलता रहेगा तब तक इंडिया में कास्ट सिस्टम बना रहेगा। आप लखनऊ के रहने वाले हैं? जी सर। तो लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब बड़ी मशहूर है। जी सर। ये गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है? यहाँ तो ना गंगा है ना यमुना है, यहाँ तो गोमती है, तो फिर ये गंगा जमुनी तहजीब का क्या मतलब है? सर गंगा जमुनी तहजीब का मतलब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ सर। बताइए सर। आई थिंक गंगा जमुनी तहजीब का रिलेशन फ्यूजन ऑफ हिंदू मुस्लिम कल्चर से रिलेटेड है, एंशिएंट और मिडिवल कल्चर का फ्यूजन हो, तो इससे गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं। ये नाम लेकिन गंगा जमुनी तहजीब का क्यों पड़ा? सर नहीं पता सर। नहीं पता? जी सर। सर इस्लाम में 72 फ़िरक़े हैं, सुना है आपने इसके बारे में? नहीं सर। नहीं सर मैं शुरुआत से ही मेरे फादर ने बहुत ही एजुकेशनल मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ही रखा है, तो अभी तक मैं कुछ थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स नहीं पढ़ पाया हूँ। नहीं, लेकिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि कुरान हो या कोई भी मज़हब हो, हमें जब उनके बारे में सही जानकारी होती है तो हम अपना एक सही नज़रिया डेवलप कर पाते हैं, वरना आमतौर पर गलत जानकारी की वजह से हमारा सोच भी, नज़रिया भी गलत हो जाता है। ठीक है ना? ठीक, आपका बहुत अच्छा रहा। मैं सर से कहूँगा आपसे सवाल पूछें। भाई जो यहाँ का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है उत्तर प्रदेश शासन का, जी सर, उसने अल्पसंख्यकों के कल्याण की कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की हैं? उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग सर मुझे ऐसे एग्जैक्ट नहीं पता सर, मुझे केंद्र सरकार का पता है सर। केंद्र का ही बताओ। केंद्र सरकार ने 2013-14 के समय रोशनी स्कीम निकाली थी, नई मंजिल निकाली थी माइनॉरिटी विमेंस के लिए। फिर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है जिसमें माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जो कि बैकवर्ड हैं उनके सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ये स्कीम निकाली गई थी, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। हुनर हाट बनाए गए थे ताकि जो माइनॉरिटी स्किल डेवलपमेंट हो सके और उनके हैंडीक्राफ्ट्स को और प्रमोट किया जा सके नेशनल वर्ल्ड लेवल पे। तो यहाँ यूपी गवर्नमेंट ने तो मदरसों के लिए जी सर, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में एनसीईआरटी बुक्स का इंट्रोडक्शन कराया है जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव है, जिसकी वजह से जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको थियोलॉजिकल के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन का भी पता होगा, जिससे एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक बैलेंस्ड और रैशनलिस्टिक व्यूज़ उनके अंदर आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। होलिस्टिक अप्रोच के लिए उन्होंने डिजिटलाइजेशन और ये नई टेक्निक भी इंट्रोड्यूस हुई है शायद। जी सर, डिजिटलाइजेशन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर अभी डिजिटलाइजेशन जैसा कि माइनॉरिटी सेक्शन में सर अभी लिटरेसी की बहुत कमी है, तो पहले तो लिटरेसी इंप्रूवमेंट हो जाना चाहिए, उसके बाद डिजिटल। मदरसों की इमारतों में भी उनके रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेशन के लिए भी अनुदान और बजट की व्यवस्था हुई है। सर इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। ओके, ये वक्फ की प्रॉपर्टी क्या होती है? सर वक्फ एक्ट था सर 1950s में लाया गया था, जिसके तहत मुझे सही से नहीं पता सर, जितना मुझे आइडिया है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सर वक्फ एक्ट के अंदर कुछ लैंड माइनॉरिटी सेक्शन को दिए जाते हैं फॉर बरियल पर्पसेस और फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मदरसास। इनका मैनेजमेंट कौन करता है? सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसके बाद स्टेट वक्फ बोर्ड बनते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स होते हैं, जो कि इस समय मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, और स्टेट वक्फ बोर्ड के इस समय हेड मोहसिन रजा जी। व्हाट इज इवेक्यूई प्रॉपर्टी? सर इवेक्यूई प्रॉपर्टी? नो आइडिया सर। कस्टोडियन प्रॉपर्टी? अभी राजा महमूदाबाद वाला इशू पढ़ा था, सुना था? नहीं सर, नहीं सुना। तो चलिए, भारत में हर 10 साल पे
जी सर। सेंसस का प्रोग्राम टेकअप किया जाता है। जी सर। व्हेन इट इज़ ड्यू? इट वाज ड्यू इन 2021। इट वाज टू बी कंप्लीट, ये 2021 में रिलीज़ होना था मार्च अप्रैल के मंथ में, लेकिन सर ये कोविड पैंडमिक, अनप्रेसिडेंटेड पैंडमिक के चलते अभी इसको थोड़ा डिले कर दिया गया है। इसका कौन सा एक्ट है? सेंसस एक्ट 1948। अच्छा। और इसको नेशनल लेवल पे कौन कंट्रोल करता है, इस पूरी एक्टिविटी? ये सर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेंसस कमिश्नर, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और स्टेट लेवल पे इसकी क्या व्यवस्था है? सर स्टेट लेवल पे नहीं पता मुझे सर। डायरेक्टर सेंसस, ओके सर। देयर इज अ डायरेक्टरेट व्हिच वर्क्स अंडर कमिश्नर। जी सर। ओके। इसमें सेंसस कराने का पर्पस क्या है गवर्नमेंट का? व्हाई सेंसस इज रिक्वायर्ड? सर सेंसस इज रिक्वायर्ड फॉर अपडेशन इन एवरीथिंग। हमें पता चलना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेजर्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर कुछ सुधार हुआ है या नहीं, लिटरेसी पैरामीटर्स अच्छे हुए हैं या नहीं, सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो में कुछ सुधार हुआ है नहीं। बेसिकली एक हॉलिस्टिक एक्सरसाइज है जिसमें इम्प्रूवमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कितना इम्प्रूवमेंट और हुआ है हमारे बेसिक पैरामीटर्स पे। पॉलिसी प्लानिंग में भी इसका कंट्रीब्यूशन है? जी सर, पॉलिसी प्लानिंग में भी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की तरफ है सर। अच्छा। उसमें भी है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में भी हमारा लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का एम है 2070। अभी CAA की चर्चा हुई थी। जी सर। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने ऐलान किया था नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन का भी, NPR। उसको लेकर के भी बड़ा ह्यू एंड क्राई और एक कैटिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी। व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट सिस्टम? सर रॉन्ग कुछ नहीं है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लगभग हर मेजर कंट्रीज सिटीजन में। नहीं है, नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन, नेशनल NPR। हाँ सर, NPR 2010 में भी कंडक्ट कराया गया था अंडर प्रीवियस UPA गवर्नमेंट। यस। उसमें कुछ पैरामीटर्स थे जिसमें पूछा गया था कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उनका रेसिडेंस, उनका डोमिसाइल। इसमें इस बार थोड़ा कुछ पैरामीटर्स का एडिशन हुआ है जिसमें डोमिसाइल पेरेंट्स की भी मांगी गई है, पेरेंट्स का रेसिडेंस एक्सेट्रा। तो जिससे अगेन सर मैं यही कहूँगा इसमें भी मिसलीडिंग हुई थी। अगर गवर्नमेंट नहीं, यहाँ तक तो सही है भाई, आप अपना अगर दे रहे हैं डोमिसाइल प्लेस ऑफ बर्थ तो पेरेंट्स का भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक चीज़ और इसमें और राइट कर रही थी कि उसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको। जी सर, प्रूफ देना पड़ेगा। प्रॉब्लम वहाँ से जनरेट हुई। UPA का जो फॉर्मेट था उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी, इस फॉर्मेट में ये 2-3 एडिशनल पॉइंट हो गए। सर मुझे लगता है प्रूफ तो बिल्कुल देना चाहिए। अगर हम इंडिया के सिटीज़न हैं तो हमें बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि नहीं, अपना प्रूफ तो आप दे सकते हैं, वालिदान के प्रूफ आर दे प्रिजर्व्ड विद यू? विल इट बी सो इजी? तो गवर्नमेंट ने बाद में ये भी कह दिया था कि अगर है तो बहुत अच्छा, और अगर किसी तरह अगर नहीं मिल पा रहे वो रिकॉर्ड्स तो उसके बाद सम डाउट वाज क्रिएटेड नो। ये सर डाउट क्रिएट हुआ था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने फाइनली क्लैरिफाई भी कर चलिए, अब दिया। इसका मौजूदा स्टेटस क्या है? व्हाट डिसीजन गवर्नमेंट हैज टेकन? गवर्नमेंट हैज नाउ टेकन सर कि जो इंडिविजुअल है उसका डोमिसाइल रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। अगर पेरेंट्स का है तो दे विल चेक इट, अगर नहीं है तो टाइम दिया जाएगा उसको, मतलब आइडेंटिफाई करने में या फिर आगे। हैव यू, आपने PIL के बारे में सुना है? जी सर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सर। तो बाकी लिटिगेशन से ये कैसे अलग है? सर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इज़ अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ये जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से
पॉपुलराइज हुआ ये टर्म 1980s में, जब जस्टिस पीएन भगवती ने ये स्टार्ट किया था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में लोकई स्टैंडी को हटा दिया गया था, जिसके वजह से अगर कोई सफ़रर है जो खुद नहीं अप्रोच कर पा रहा सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी को या हाई कोर्ट्स को, तो कोई और विजिलेंट सिटीज़न इंडिया का वो अप्रोच कर सकता है फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट के लिए उस सफ़रर के। इसमें कुछ छूट भी दी गई है और लिटिगेशन के मुकाबले एट द लेवल ऑफ हाई कोर्ट? सर ये नहीं पता मुझे। अच्छा, इसमें काफ़ी स्टाम्प में छूट है, 50 रुपीज़ ओनली ओके सर। एज अगेंस्ट पर रिस्पोंडेंट। अगर पिटिशनर ने 3 रिस्पोंडेंट बना रखे हैं तो ओनली 150 रुपये की कोर्ट फीस देना पड़ेगा, बाकी में ये सब व्यवस्था नहीं है। ओके सर, थैंक यू। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम सुना होगा आपने? जी सर, हाल फिलहाल में लखनऊ और नोएडा में अभी इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसमें क्या नई चीज़ आ जाती है? सर नॉर्मल एसपी और डीएम सिस्टम में ये होता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले एसपी को डीएम का सब परमिशन लेनी पड़ती थी। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में सिटी के कमिश्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फुल पावर होगी। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का उनको ज़िम्मा सौंपा जाता है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर का जो जितना भी फंक्शन होता है वो पुलिस कमिश्नर, सिटी के पुलिस कमिश्नर के अंडर हो जाता है। नहीं, इज इट कन्फाइंड टू लैंड ऑर्डर ओनली या और भी जो पेटी ऑफेंसेस हैं ये सर सबके लिए वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं? जी सर, सब कुछ जाता है। मेनली सर एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर का इसमें था कि एसपी को पहले परमिशन लेनी पड़ती है डीएम। नहीं, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिस्टम है उससे शिफ्ट हो जाती हैं कमिश्नरेट को? कोई जानकारी है आपको? सर और तो इसमें अभी मुझे इतना ही पता था सर। अच्छा, चलिए फिर बाद में अभी ब्रीफिंग में बता देंगे आप। जी सर। हमारे जनवरी में कई सारे दिवस मनाए जाते हैं। अगर हम 26 जनवरी से बात घर को जाए तो कुछ जानकारी दे सकते हैं आप, वो कौन कौन से थे? मैम 24 जनवरी को यूपी दिवस था। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे था। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे था। क्यों मना रहे थे हम यूथ डे? स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो स्वामी विवेकानंद वॉज वेरी मच एन इंस्पिरेशनल फिगर थे वो यूथ के लिए। वो डिवोशन टू ड्यूटी को प्रिस्क्राइब करते थे और वो इंस्पायर करते थे यूथ को टुवर्ड्स स्पिरिचुअल नेशनलिज्म और हार्ड वर्क, जिसके चलते स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल यूथ डे गवर्नमेंट ने 23 जनवरी को भी कुछ सेलिब्रेट हुआ? 23 जनवरी को नहीं पता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। यस मैम। 24 जनवरी यूपी दिवस था मैम। अच्छा, और कुछ? और मैम याद नहीं आ रहा मैम, एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स थे मैम। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं हम? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? मैम 26 जनवरी का इम्पोर्टेंस हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने ट्राइफेगर होइस्ट करके पूर्ण स्वराज उस दिन घोषित किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इस डे को इसीलिए इम्पोर्टेंस दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी 26 जनवरी को मार्क करने के लिए 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक इन्फोर्स किया गया था। अच्छा, ये प्रवासी भारतीय दिवस उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ मनाया गया था? हम 10 जनवरी 2019 को शायद मनाया।
9 जनवरी 2019 को इलाहाबाद में। नहीं, नहीं, वाराणसी में। और उस बार 9 जनवरी की जगह 23 से 25 जनवरी 2019 हुआ था कुंभ की वजह से। इलाहाबाद में कुंभ था, कुंभ की वजह से वो 23 से 25 जनवरी के बीच में मनाया गया था। अच्छा, गणतंत्र दिवस के बाद हम लोग 2 दिन बाद बीटिंग रिट्रीट करते हैं, क्यों करते हैं? मैम नहीं पता मैम। अच्छा, ये जो अभी कोरोना की वैक्सीन्स आई हैं, कौन कौन सी आई हैं? मैम कोवैक्सीन आई है और कोवशील्ड। क्या फ़र्क है दोनों में? नेशनल और इंटरनेशनल का फर्क मैम, कोवैक्सीन नेशनल वैक्सीन है और कोवशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मैंडेटेड। अच्छा अच्छा, ठीक। ये आयुष्मान भारत योजना के बारे में कुछ जानते हैं? मैम आयुष्मान भारत योजना एक हॉलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है जिसमें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को प्राइम मिनिस्टर ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट करने का, जिसमें सिर्फ क्यूरेटिव हेल्थ केयर ना हो, प्रिवेंटिव और प्रमोटिव भी हो। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर भी होगी। और इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, सेमी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें 10 करोड़ हाउस होल्ड्स यानी कि 50 करोड़ पॉपुलेशन इसमें कवर हो जाएगी। 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा फॉर सेकेंडरी और टर्शरी डिसीजेस। अच्छा, ये और आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है? मैम आत्मनिर्भर भारत फोकस इज़ ऑन इंडिजिनस प्रोडक्शन, सेल्फ रिलायंस, यानी कि सेल्फ रिलायंस हर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में। एज प्राइम मिनिस्टर सेड कि ये ग्लोबलाइजेशन सेंट्रिक भी होगा और ग्लोबल वैल्यू चेन्स इस्टेब्लिश करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत योजना में जो अभी ODOP स्कीम आई है, उसमें लखनऊ का कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है? मैम चिकन। अच्छा, कुछ हिस्टोरिकल मोमेंट्स के बारे में बताएंगे लखनऊ के? लखनऊ के हिस्टोरिकल मोमेंट्स, ये मॉन्यूमेंट्स, इमारतें। इमारतें मैम, इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, छोटा इमामबाड़ा, अशरफी मॉस्क, लमार्टिनर कॉलेज बिल्डिंग, बॉयज़ कॉलेज बिल्डिंग एंड अच्छा, ये रूमी दरवाज़ा को रूमी दरवाज़ा क्यों कहते हैं? मैम रूमी दरवाज़ा को रूमी दरवाज़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टर्किश इन्फ्लुएंस था और ये रोम में जो टर्किश गेट है उससे इन्फ्लुएंस करता था, इसलिए इसको रूमी दरवाज़ा कहा गया। अच्छा, वैसे फाइनली क्या किया आपने? ग्रेजुएशन, PG? मैम मैंने ग्रेजुएशन की सिविल इंजीनियरिंग में 2017 में कंप्लीट हुई। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैम तो आप ऑलरेडी इंजीनियर हैं, तो आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाह रहे हैं? मैम सिविल सर्विसेज मैम इंजीनियरिंग मैंने ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी के तहत करी थी। आई वाज फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग वांटेड टू गो टू फॉर पब्लिक सर्विस ओनली। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग आई स्ट्रेट अवे वेंट फॉर सिविल सर्विसेज। ओके अमान, थैंक यू सो मच। अब आप ठीक है अमान, योर इंटरव्यू इज ओवर, बैठो। You are very composed. Your presentation is very good. Your communication is up to the mark, and most of the questions you answered quite well. अगर बोर्ड मेंबर्स को ये पता चलता है कि आप माइनॉरिटी से हैं तो ये उम्मीद की जाती है आपसे कि माइनॉरिटी से जुड़े हुए मुद्दों पर आपकी एक समझ होगी और उसको वो जानना चाहेंगे, इसलिए मैंने आपसे ज़्यादातर सवाल माइनॉरिटी से जुड़े पूछे। तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है सर? क्या क्या कर सकते हैं इसमें सर? जैसे कि यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाइए, भारत सरकार की वेबसाइट पर जाइए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी रिसेंट स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, कौन से हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। वक्फ के बारे में जो आपने बताया वो सही नहीं था,
है ना। वक्फ और औकाफ फिर बात आएगी, तो ये वक्फ बोर्ड और औकाफ की जो ट्रस्ट है, ये क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और चूँकि इधर राजा महमूदाबाद की तमाम प्रॉपर्टीज़ को लेकर के बहुत लिटिगेशन चला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह, और फिर उसमें फ़ैसला आया। उसी में इवैक्वी प्रॉपर्टी, कस्टोडियन प्रॉपर्टी, एनिमी प्रॉपर्टी, ये 3 अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ज़रूरी नहीं है पूछा जाए, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये जवाब देना चाहिए। ठीक है, सर रीनेमिंग ऑफ सिटीज़ का बेस्ट आंसर क्या होगा सर, जैसे आपने ठीक है, आपको सपोर्ट ही करना है। गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन को हमें क्रिटिसाइज़ करना ही नहीं है, चाहे हमारी मुख्तलिफ राय कुछ हो। जी सर। ठीक है, जी सर। आपको इस बात का ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया है, कोई एक्ट पास किया है, कोई शहर का नाम बदला है, कोई पॉलिसी बनाई है, तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट होने जा रहे हैं और हम ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो कमीशन हमको क्यों लेगा। जी सर। तो अगर हम गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं तो हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट ही करना है। तो बिल्कुल आंसर बिल्कुल ठीक है कि नाम सिर्फ एक जगह या व्यक्ति का नाम नहीं होता है, उसकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत का भी प्रतीक होता है। और इसलिए वर्तमान सरकार ने उस सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को पुनर्स्थापित करने का, रेस्टोरेशन का काम किया है, इसलिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और CAA को भी लेकर के यही हमको कहना है कि गवर्नमेंट का बिल्कुल सही था उसका आंसर। हाँ, और ये सारी चीज़ें सही। सर एक और पूछना था सर, जैसे मुझे हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम होती है कठिन शब्द बोलने में, तो अगर इंग्लिश में स्टार्ट करूँ तो वो बोलेंगे जैसे टोक देंगे, टोक देंगे। अगर आप लगातार अंग्रेज़ी बोलते रहेंगे तो कह देंगे अरे भाई आप तो बड़े अंग्रेज़ी दाँ हैं, हमारे यहाँ तो गरीब है, किसान है, मज़दूर है, आपको तो उनके बीच काम करना है, उनकी समस्याएं सुननी है, वो तो आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे, वो तो कहेंगे बड़े अंग्रेज़ साहब आ गए। तो भाई हिंदी में हमको काम करना है, बोलिए। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आम बोलचाल की हिंदी में बोलो, उसमें कुछ अंग्रेज़ी के वर्ड्स आ जाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा का पूरा अंग्रेज़ी में ना बोलें जब तक कि कोई बोर्ड मेंबर ही आपसे अंग्रेज़ी में सवाल ना करे। ठीक सर। और किसी वजह से अगर ये लगता है कि इसका जवाब फिर भी हम हिंदी में नहीं दे पाएंगे या बेहतर नहीं दे पाएंगे या अंग्रेज़ी में हम ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो बोर्ड मेंबर से आप परमिशन ले लें कि सर मे आई आंसर दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश, मे आई रिप्लाई दिस इन इंग्लिश। अगर वो कहते हैं कि हाँ हाँ गो है तो बिल्कुल दे। ठीक। पुलिस कमिश्नरेट में जी सर। जो अभी आप कह रहे थे ना कि खाली लैंड ऑर्डर का ही शिफ्ट होता है, तो इसमें 2-3 जो पेटी क्रिमिनल एक्ट्स हैं उनके भी पावर्स डेलीगेशन का प्रोविज़न है। ओके सर। पहले तो CRPC से 144 गया तो लैंड ऑर्डर का उनको मिल गया। जी सर। इसमें 2 सेक्शंस और हैं, 133 और 145, जो प्रिवेंटिव सेक्शंस हैं, इनको पढ़ लेना। इनमें भी लड़ाई झगड़े का हमेशा अंदेशा होता है, कहीं रास्ते को लेके, कहीं ज़मीन को लेके, कहीं किसी के पोजीशन को लेकर के। ओके सर। तो चूंकि ये भी सब लैंड ऑर्डर जुड़ा, इसलिए नॉर्मली ये भी शिफ्ट कर दिया जाता है कमिश्नरेट को। ओके सर। इसी तरह कुछ और भी कानून हैं, जैसे आर्म्स एक्ट है, इसमें पोजीशन ऑफ इलीगल वेपन या मिसयूज ऑफ लाइसेंस्ड वेपन, इन सब पर प्रोसिक्यूशन और इनके प्रोविजंस हैं। तो ये भी मोस्टली लैंड ऑर्डर रिलेटेड है, तो ये भी उनको दे दिए जाते हैं। सेम इज़ विद द एक्साइज एक्ट, एक्साइज एक्ट की भी कुछ पावर्स उनको दे दी जाती हैं। और जैसे जो ये सराय एक्ट एक बहुत पुराना है, जो होटल मैनेजमेंट और ये सब देखता है, इस टाइप के जो पेटी ऑफेंसेस वाले मामले थे, ये सब दे दिए जाते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग हुआ है उसमें खाली 144 अभी दिया गया है, 133-45 को लेके विवाद चल रहा है। सिर्फ 144 दिया गया और उस पर अभी होम डिपार्टमेंट ने राय मांगी है कलेक्टरों से, इन कंसर्न जिलों की, कि दिया जाना उचित होगा कि नहीं, लाइक दैट। ठीक सर।